اب آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، میں بلا تشبیہ دعوت دے رہا ہوں جناب علامہ زیغم عباس مجتبائی، آپ گزرو۔ تو پڑھ لیا اپنے مزار تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اپنے مزار تاثیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، کل لٹ گیا شبیر کا، کل لٹ گیا شبیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے ہن ہے شبیر کا، ہن ہے شبیر کا، زہرا کے لال پر دل کھول کر پنجہ کھول کر آوازیں بلند کر ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام تحية وإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأبي القاسم الذي كذا بشأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي كذا بشأنه لولا ما خلقت الخلاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله وأحبابهم وأصحابهم وأشياءهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والكلين واليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلوات دعا پروردگار عالم بارگاہ کی سفیدات مبارکہ مقدس میں قبول فرمائے. ہمارے محترم جبی بھائی اور ان کے جتنے معاونین ہیں منتظمین انتظامیہ جنہوں نے جیسے جیسے مجلس پاک میں حصہ لیا ہے، ہمارے کیمرے مین بھائی، ہمارے ساؤنڈ والے بھائی، ہمارے تلاشین، ہماری انتظامیہ، ہمارے مجمع کی آن بان شان ہمارے ماتمی بھائی پروردگار سب کی نوکریاں حاضریاں قبول فرمائے. خصوصی طور پہ ایک تو دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور آمین کہیے. میرے مالک، اس وقت ملک پاکستان کے حالات انتہائی کشیدہ ہے. میرا مولا جہاں بھی ذکر حسین اپنی جاری و ساری ہے تمام مقامات کی حفاظت فرما. سارے علماء و ذاکرین اور بالخصوص ہمارے ماتمی بھائی مالک ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما. جو ایسے شرپسند عناصر ہیں جو شیعہ سنی میں لڑائی ڈالنا چاہتے ہیں، مالک انہیں ہدایت نصیب فرما. اور اگر وہ ہدایت کا بارڈر کراس کر چکے ہیں تو مولا انہیں نصب و نبود فرمائے. پاکستان میں امن و امان کی بحالی اور سلامتی اور وسعت پیدا کرنے کے لیے صلوات ایسی پڑھیے کہ حسین کی ماں ہم سب پہ راضی ہو جائے. اجازت بادشاہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے. بھائی جان تھوڑا ماحول ٹھیک کرتے ہیں، آنا جانا ختم ہو جاتا ہے ہمارا. 2-4 منٹ میں جناب کی نوکری کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اجازت ہے. میرے سارے بھائی تیار بیٹھے ہیں. ایک جی بسم اللہ. آواز صاف آ رہی ہے؟ نہیں صاف نہیں آواز. نہیں آواز تو پیچھے نہیں آ رہی. اچھا یہ ڈبہ بھائی، یہ ڈبہ. اچھا چلیں اتنی عبادت کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. نہیں آواز آ رہی ہے تو آپ نے جواب دینا. نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائی اب ٹھیک ہے پیچھے
سارے بھائی ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد شاید ساؤنڈ ٹھیک ہو، شاید میرا نہ ٹھیک ہوگا مسئلہ، تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کی دعاؤں کے صدقے میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی بات شروع کی تھا جناب۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور جو آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں عطیہ کی گئی اس کا نشان 43 ہے۔ اتنے میں بھائی سیٹنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے نوکر کی طرف دیکھیے تاکہ وقت بچے، آپ اتنا قیمتی وقت نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ میں ابھی آپ کے سامنے پاک حسین کے نانا کا قصیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ جب بیٹھتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں۔ یہ تو یا تو مصطفیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں یا برائے نام مانتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ نعوذ باللہ من ذالک اس لیے کافر ہیں کہ یہ مولا علی کو نبی پاک سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ میں لاہور کے دل میں انتہائی چیدہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، لفظ کہہ دوں اتنے سنگین حالات میں پھر بھی ضائع ہو جائے تو دکھ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم، ہم علی سے کئی گنا زیادہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اور اتنا زیادہ مانتے ہیں اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتا ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ بڑا گہرا جملہ تھا، خدا کی قسم بڑا گہرا جملہ تھا، مولا علی کی قسم۔ جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں، جو میرے بھائی قریب بیٹھے ہیں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا بھائی آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، نہیں تھوڑی دیر کے بعد جوار صاحب تھوڑی دیر کے بعد نوکری دیتا ہوگا جی، میں جلدی اٹھتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں ذرا چونکہ باریک لوگ تشریف فرما ہیں، آپ اشارہ سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے جتنے بھی عوام بیٹھی ہوئی ہے سارے ضروری نہیں کہ ایک مزاج کے ہوں، کچھ میرے جیسے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی عقل ذرا تھوڑی ہے، تو وہ جو میری طرح کے تھوڑی عقل والے بندے ہیں ان کے لیے میں جملہ کھول دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر علی بھی دھیان رکھے جو علی بھی کسی جنگ میں نعوذ باللہ نبی کو چھوڑ جاتے تو ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے، اس کا مطلب ہے ہم نے صرف اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، میں خود آپ کے صدقے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لوگوں کو جی بسم اللہ کریں، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شیعہ جو ہے یہ ایک گستاخ مذہب ہے، جھوٹوں کا مذہب ہے، یہ دیوانوں کا مذہب ہے۔ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، شیعہ مذہب مفکروں کا مذہب ہے، علماء کا مذہب ہے۔ اور اگر آپ کو میرے جملے پہ یقین نہ ہے کہ میں نے کیسے کہہ دیا یہ عالم کا مذہب ہے، ارشاد صاحب آگوگا جی دوار صاحب، اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا تو میں بھی آپ کے سامنے ایسا لفظ پڑھوں گا کہ اس لفظ کا موجودہ ایسا ہے کہ وہ لفظ ہر شخص کو یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ وہ لفظ کس نے کہا ہے۔ آپ نے ممبر کی طرف دیکھنا کیونکہ بار بار مومنین آ جا رہے ہیں، آپ نے اس طرح دیکھنا۔ میں نے بات شروع کر دی، میں کہہ رہا ہوں ہم شیعہ صرف اسے چھوڑتے ہیں جو نبی کو چھوڑ دے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے گورا کون ہے، کالا کون ہے، اور گورا کون ہے، کالا کون ہے۔ ہم تو مفکر علامہ اقبال کے مذہب پہ ہے جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم توڑے ہیں۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کریں، جو بھائی کھڑے ہیں جی غدیر کی یاد میں مل کے اونچا نعرہ حیدری، اللہ آپ کی ضرورت میں اضافہ فرمائے۔ جی شکریہ۔ تو میرے محترم سامعین، میں آپ کے سامنے چند لمحے میں اپنی بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی آواز بھی نہ آئے، بچوں سے بھی۔ یہ میرا جو چاند سے پیارا بیٹا ہے، بیٹا آپ کی آواز نہ پتر آئے، 2 منٹ بیٹھ جائیں شاباش۔ چلیں بسم اللہ کریں۔ میں جب بھی منشی باغلدہ آتا ہوں تو میں بالکل آپ کا اپنا نوکر بن کے پڑھتا ہوں۔ اگر کبھی ماحول خراب بھی ہو جائے نا بچوں کے تو میں ویسے ناراض نہیں ہوتا جیسے عام طور پہ ذاکر ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ اپنے نوکر سے پیار فرما رہے ہیں، پہلے جملے پہ آپ نے زور سے دعا دی ہے، اس کا مطلب ہے آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں پاک حسین کے نانا کی شان پڑھوں۔ تو ایک لفظ ادبی کہتا ہوں اور اگلا لفظ کہوں گا مشہور عالم دین کا جو اس وقت پاکستان میں زندہ موجود ہیں، صاحب عزت ہیں، عمران خان کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے اور ہر شیعہ سنی مسلمان ان کو پیار کرتا ہے۔
उनका नाम बाद में लेता हूँ। पहले एक अदबी जुमला सुन लीजिए। कौन है मुस्तफ़ा? आज की ऐसी मजलिस होगी आपकी दुआओं के सदक़े में, आपकी दुआओं के सदक़े में आज की चंद मिनट की ऐसी मजलिस होगी कि आप कहेंगे अगे जाएगा मुझे तो भाई आंदा तो की कर जाता है, अज मज़ा आया, वाकई पैगाम दे गया। ये आपसे मैं मनवा के जाऊँगा, शर्त एक ही है आपकी दुआ, क्योंकि आप अगर हमें दुआ नहीं ना देते तो हम मट्टी से बदतर हैं। अगर आप हमें दुआ देते हैं तो हीरा भी हमारे सामने कुछ नहीं है। मैं पहला लफ्ज़ अदबी कहता हूँ, हल्की से दाद आए तो काफ़ी है, अगला जुमला फिर बड़ा होगा। कौन मुस्तफ़ा? जिसके लाहौरा कदर करा जी, जिसके हाथों की नरमी। मैं रुका क्यों हूँ? क्योंकि मेरे भाई आ रहे हैं और फिर ज़ाहिर आप उन्हें देख रहे हैं, तो जैसे मेरे भाई गुजरते हैं फिर मैं जुमला कहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात, चल कोई बात नहीं। ये हमारे ज़ाकिर साहब हैं, तो शायद वो ज़रूरी काम लंगर वगैरह के लिए आए होंगे, उनका हक बनता है। बाकी मेरे भाई देखिए, मेरे तरफ देखिए यार, हमारा काम जो हमें पता होता है। कौन मुस्तफ़ा? जिसके हाथ, लाहौरा ने कदर नहीं करनी है, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर हो जाएं, ऐसे कुल्ली रहमत का मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना मान भाई, इसका मतलब जो भी भाई ये हुआ कि लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि शिया मजलिस में नबी पाक की शान पड़ जाए तो गुंगे हो जाते हैं। हालांकि खुदा का समय एक लफ्ज़ कहता हूँ और हर चेहरा मेरे साथ बोल रहा है, क्योंकि हकीकी शिया है ही वो जो मुस्तफ़ा का नौकर है, और हमसे बड़ा मुस्तफ़ा का नौकर कोई पैदा ही नहीं हुआ। भला क्यों? क्योंकि हम अली को इसीलिए तो मानते हैं, वो कहते हैं मैं मुस्तफ़ा का नौकर हूं। तो जो हमारा मौला है वो खादिम है मुस्तफ़ा का। तो जी बिस्मिल्लाह, इसलिए हम पे वाजिब है कि याद रखिए लाहौर वालों, मौला दी कसम सच्चा अकीदा दस लगा, अगर अली का नाम लेना एक कुरान का सवाब है ना, तो मुझे अली ही की कसम नबी का नाम लेना 7 कुरानों का सवाब है। कितना अच्छा आपने सुना। लो जी, ये थी मेरी तमहीद। अब मैं पहला जुमला कहने लगा हूँ, ये आपने सुन लिया। जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर सुब्बूहन कुद्दूसन की तस्बीह पे मजबूर हो जाएं, ऐसी कुल्ली रहमत को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अब आइए उस आलिम दीन का नाम लूँ जिन्हें और तो और हमारे फेवरेट कप्तान इमरान खान बड़ा प्यार करते हैं, हज़रत मौलाना तारक जमील साहब। अगर उनका लफ्ज़ ना हो छुरी आपकी शारग मेरी, लफ्ज़ भी सही हो, आपके दिल पे उतरे, फिर आपकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। क्योंकि मैं इतना जाहिल नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ ऊँची ऊँची बोलो ताकि आवाज़ नजफ वाले शाह तक जाए। नजफ वाला तो उनकी भी सुनता है जिनकी आवाज़ ही नहीं होती, ठीक है ना? अल्लाह को सलामत रखे। नजफ वाला उज़्नुल्लाह है, नजफ वाला तो अल्लाह का कान है, वो तेरी मेरी आवाज़ निकालने का मोहताज है। अब बस इतने जी मेहरबानी, इतनी गुजारिश है कि अपने नौकर तक आवाज़ आए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, वरना तेरे मेरे बोलने का अली मोहताज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना बोलिएगा, मुझे समझ आएगा वाकई लाहौर वालों ने ऐसा सुना जैसे सुनने का हक था। मुस्तफ़ा कौन? जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर सुब्बूहन कुद्दूसन की तस्बीह पे मजबूर हो जाएं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। क़िबला काबा हज़रत मौलाना तारक जमील मर्तज़िल्लाहुल आली मिंबर पे मौजूद हैं। हज़ारों का मजमा है, कई सौ लाइव कैमरे चल रहे हैं, और एक शख्स उठ के सवाल पूछता है, क़िबला आप बताइए ना मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। खुदा की कसम कितना गहरा जुमला था। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। कितना गहरा जुमला है। और मैं आपको सलाम करता हूँ, आपने समझा है। दोनों हाथ उठाइए, नबी की तस्वीर बनाइए, ऊंचा नारा हैदरी। आपकी क्या बात है भाई, मौला आपको सलामत रखे। मेरे करीब वाले भाई पे जरा बोलिएगा ना, ताकि अगर आपकी आवाज़ आए मिंबर तक। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ जी सदके। जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे, ऐसे मुअल्लिम हकीकी को मुस्तफ़ा कहते हैं। एक कितनी बातें हो गई? अल्लाह आपको सलामत रखे। तीसरी, जनाब सलमान फारसी सदात की चौखट पे आने से पहले फारसी थे, आने के बाद सलमान मोहम्मदी हो गए। आपके बच्चों को भी पता है। पिछले पिंड से यानी कि फारिस से 5-6 उनके पुराने दोस्त आ गए मिलने के लिए कि यार जरा चल के चेक करें कि सुना है सलमान बड़ी करामतें दिखाता है, सुना है मौजज़े करता है, इत्थे की सी तो उत्थे की हो गया। वो जब पहुंचे तो आओ भाई फतू फलाना की हाल है, ठीक हो? पुराने दोस्त मिले, बैठे। सलमान के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसकी वजह यह थी कि सलमान अपने घर में रहते ही नहीं थे, वो तो 2 घरों पे रहते थे, या अल्लाह के घर में या बिस्मिल्लाह या जी सड़के जाओ या बीबी बतूल पाक की चौखट पे। मुझे एहसास है हबस है
थोड़ी गर्मी है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, फिर भी मैं आपको तंग नहीं करूंगा, बस थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए, इतनी काफी है। एक हबस है और ऊपर से तकरीबन सारे नफीस लोग हैं, ठीक है, हाँ सारे ही, ठीक है जी, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो काफी है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं आपसे थोड़ी दुआ छीन लूंगा इंशाल्लाह। कब तुम ऐसा करो, तुम बैठो, मैं भी जाता हूं और तुम्हारे लिए खाने को बंदोबस्त करता हूं। ये कह के जनाब सलमान चले, और वो वीराना मदीने वाला मैं इसी साल में 2020 के जनवरी में मैं उम्रा करके आया हूं, तो मैंने वो वीराना देखा है। अल्लाह आप सबको भी ले जाए। आबादी क्रॉस हुई, सामने वीराना आया। अच्छा, वो जो मेहमान थे ना वो पीछे पीछे थे। सलमान ने तो कहा था ना घर बैठो, मैं को ले ना, वो भी पीछे थे, चेक नहीं करता क्या है, तो सही थे बोल पाना, क्योंकि आपकी मार्फत जबरदस्त है। जनाब सलमान आगे बढ़े, आबादी खत्म हुई, वीराना आया, सरकार ने कानों पे हाथ रखे। एक हिरन से गुजारिश है, ज़िबा होने के लिए हाजिर हो जाए, मेरे घर में मेहमान आए हैं। मैं सदके जाऊँ, मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मुस्तफ़ा कौन? दलील नंबर 3, तीसरी दलील शुरू है, तीसरी दलील शुरू है। जिसके हाथों पे पत्थर बोले वो मुस्तफ़ा, जो वैशी को रजी अल्लाह बना दे वो मुस्तफ़ा। और तीसरी दलील मुस्तफ़ा कौन? तवज्जो। एक हिरन से गुजारिश है, ज़िबा होने के लिए हाजिर हो, मेरे घर में आए हैं मेहमान, मैंने करनी है मेहमान नवाजी। हिरन हाजिर हो, बस इतना कहना था कि सामने से नौजवान खूबसूरत शाह साहब, खूबसूरत तरीन हिरन दरूद पढ़ता हुआ सामने से आया, और उसने आते ही अपना मत्था जनाब सलमान की जूती पे टेक दिया। जनाब सलमान ने उसके कान से पकड़ा और कहता, सरकार मैं हूँ, हाजिर होने के लिए मैं हूँ, आइए मुझे ज़िबा कीजिए, मेहमान वाली कीजिए। बस ये देखते ही दरख्त की ओट से मेहमान बाहर आए। है सलमान, अब तो इस लायक हो गया कि जानवर भी तेरी गुफ्तगू समझते हैं। फरमाया क्या करूं, जब से ज़हरा के बाबा ने मिन्ना अहलल बैत कहा है ना, मैं जो कहता हूँ वही हो जाता है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। मेरे भाई दलीलें कितनी हो गई? ये अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, आपकी मोहब्बतें जनाब, बड़ी मेहरबानी। अब चौथी जी, तैयार है सारे? और मजलिस जो थे ना, मजलिस पाक, एक भी लफ्ज़ आ जाए तो काफ़ी है। असल मजलिस है दुआओं की कबूलियत की जगह। हम सारे इंसान लालची इंसान हैं, हम यहाँ क्यों आते हैं? ताकि दुआएं पूरी हो जाए। अब मैं चौथी दलील पे दुआ मांगूंगा, आप आमीन कहिए। ये जो अब जुमला पढ़ने लगा हूँ, ये मेरे बादशाह अली की कब्र की जियारत पे लिखा हुआ है, जियारत कब्र। और दुआ मांगो सारे आमीन को, अल्लाह हम सबको ले जाए, अल्लाह हम सबको वजहुल्लाह की जियारत नसीब फरमाए। दलील नंबर 4। अच्छा, वो जुमला ऐसा है मेरे मोहतरम सामीन, इंसान को अपनी कमी माननी चाहिए। देखिए मुझ में कमी है, वो क्या है? मेरा सीना तंग है, मेरे पास इल्म नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपकी दुआओं से सीखता रहूंगा तो फिर इल्म आता रहेगा। तो अकल थोड़ी है, सीना लफ्ज़ों से खाली है। जब मैंने ये सलाम पढ़ा था, सच्ची बात कर रहा हूँ, तो मैं परेशान हुआ था कि यार ये कैसा सलाम है, क्योंकि सलाम तो होते हैं ना इज्जत बढ़ाने के लिए, ये किस तरह का सलाम है, मेरी समझ में नहीं आया था। फिर मैंने उलमा से पूछा, फिर मैं मुतमिन हो गया। हो सकता है आप भी मेरी तरह रहें, या हो सकता है आप बोल पड़े। वो सलाम ये था, तेरे बादशाह अली की कब्र की ज़ियारत का जुमला सलाम। दलील नंबर 4, मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? सलाम सुनिए। अस्सलामु अलैका या खासिफन नाले व काशिफल मुहले। तर्जुमा सुनिए, मुश्किलें, मेहरबानी, मुश्किलें हल करने वाले अली पे सलाम, और उस अली पे सलाम जो जूतियां गांठता है। ये है मुझ में और आप में फर्क। क्योंकि मेरी मार्फत तंग थी, मेरी अकल में कुछ नहीं आया, आप बोल पड़े, इसका मतलब है आपकी मार्फत मुझसे ज्यादा है। अल्लाह मजीद वुसल फरमाए। मैं परेशान हो गया भाई, मैं परेशान, खुदा की कसम सदके जामा भाई जी बुजुर्गों, मैं परेशान था। अब मैंने शिया सुन्नी उलमा से पूछा कि कायनात का बादशाह, कायनात का मौला, ये कैसा सलाम है? जूतियां गांठने वाले पे सलाम। ये तो हमारी पाकिस्तानी कल्चर में एक बरादरी है, हमारी भाइयों की मोची बरादरी, वो ये अल्लाह ने उनके हाथों में ये टेंडर रखा है कि वो ये काम करते हैं। और अली तो वो सैयद है जो कायनात की सबसे बड़ी सैयदजादी का भी सैयद है। तो ये कैसा सलाम है कि जूतियां गांठने वाले पे सलाम? कम अज कम जिदी अम्मा शिया वो बोले, और मेरे सुन्नी भाई जो कैमरे के जरिए या वैसे सुन रहे हैं, वो चेक करें कि शिया नबी की शान पे कैसे बोलते हैं। अब चूंकि थोड़ी अकल थी, मैंने उलमा से पूछा, मैंने कहा शिया सुन्नी मौलवी हो, मुझे बताओ ये कैसा सलाम है? कहा तुम्हें नहीं पता, जब भी बतूल के बाबा की जुत्ती टूट जाती थी अली गांठ देते थे। हाय हाय, खुदा
आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा भाई, जो हाथ खुदा में बुलंद है जी, किसी कमीने का मुहताज ना हो, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। अच्छा, अब मैं पूरे बाग मुंशी लद्दे का, जी बिस्मिल्लाह, मैं पूरे मुंशी बाग लद्दे का मुश्तरका और साझा नौकर बन के मैं आपकी तरफ से पूछता हूँ, आपने तवज्जो फरमानी है, नौकरी मैं आपकी करता हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह जी आप फरमाते हैं कि धड़ मैं हूँ, सर अली है, शहर मैं हूँ, दरवाज़ा अली है, मूसा मैं हूँ, हारून अली है, सदके जावा, अली मेरा भाई है, मैं अली का भाई। मुकदी मकाइए किन्ने को फजाल ने, वो तो बंदा पढ़ नहीं सकता, मुकदी मकाइए। आप फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो फहाज अली मौला, जिस चीज़ का मैं मौला हो उस चीज़ का अली मौला है। तो हमें पता है मैं आपका नया नहीं पुराना नौकर हूँ, 2-3 साल से मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा सारा पंडाल उठ के बोले तो हक अदा नहीं होता, ये मेरा अकीदा नहीं है। अली वाला बैठा बैठा वाह कर दे हक अदा हो जाता है ना। मैंने कभी ये कहा है कि कल तक दाद मिलती रहे तो हक अदा नहीं होता ना। आप बैठ के एक पुत्र बस आवाज़ ना पुत्र आए, बस आप बैठ के एक मरतबा वाह कहें, नौकर की नखरा की मैं राजी हूँ। लेकिन इतना मेहरबानी कीजिए, अगर जुमला इस लायक हो तो पाकीज़ा आवाज़ रसीद बन के, वलायत की रसीद बन के नंबर तक आनी चाहिए। या रसूलल्लाह आप तो कहते हैं जिसका मैं मौला उसके अली, जब आप जैसा अली मौला है, जब अली आप जैसा मौला है, जब अली आप जैसा मौला है, तो क्या मदीना में मोची नहीं थे? अगर मोची नहीं थे तो क्या हुआ? क्या सहाबे किराम नहीं थे? जो आपके नौकर हैं सारे आपके कमी हैं, आप किसी सहाबी को ड्यूटी देते वो आपकी गांड देता। इधर से आप कहते हैं अली मुझ जैसा मौला है, उधर से जब भी जुत्ती टूटे आप अली को देते हैं। वजह क्या है? तुझे पता नहीं इस जुत्ती ने वहां जाना है जहां कोई नबी नहीं जा सका। अगर अली के अलावा कोई और छू नहीं ये वहां जाने के लायक नहीं रहेगा। यही सबके नाम, मौला आपको सलामत रखे। सरकार शुक्रिया। लो जी जो भाई खड़े हैं जी, एक मरतबा दोनों हाथ उठाइए, ऊंचा नारा हैदरी। बादशाह आपको सलामत रखे जी, सदके नामा जी, सदके सरकार मेहरबानी। हैदरी भाई कितनी दलीलें हो गई? 4। जिसकी जूती कायनात का मौला अली साफ करे, तो ऐसा जुमला तो जरूर बोला जाए, मौला की कसम रुमाल से नहीं पग से। अली मौला अपनी पग से जिसकी जूती साफ करे वो ज़हरा का बाबा मुस्तफा है। पाजी दलीलें कितनी हो गई? हाँ सदके जामा, मौला आपको सलामत रखे। 5वीं, हक़्क़ुल यकीन, लाहौर इस काबिल है कि यहाँ इल्मी बातें की जाएं। आपका इलाका इस काबिल है कि यहाँ मेहनत की जाए, यहाँ पढ़ा जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। 5वीं दलील, हक़्क़ुल यकीन, हजरत अल्लामा बाकर मयलसी अल्लाह दरजाते, वो लिखते हैं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ना कोई तोहफा लेके आऊँ आपके लिए, क्योंकि आप लोग ऐसे हैं कि आप अपने काम से फारिग होकर फिर इकट्ठे बैठते हैं, पान शान सिगरेट खाते पीते हैं और साथ में दीनी बातें करते हैं, आप डिस्कस करते हैं। मुझे पता है आप जाकिर मौलवी की गुफ्तगू को डिस्कस करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए। 5वीं दलील, वो फरमाते हैं जब मदीना में किसी माड़े बंदे की बेटी की शादी होती और उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो परफ्यूम खुशबू का इंतज़ाम करे पूरी बारात के लिए, तो सारे बोला जी, तो इसका तरीका ये होता था कि वो माड़ा बंदा जिसकी बेटी की शादी होती थी और जेब में पैसे नहीं होते थे, वो बाल्टी भर के पानी लाता, आके बतूल के बाबा के सामने करता, सरकार कुल्ली करते, सारा पानी परफ्यूम में बदल जाता। बादशाह आपको सलामत रखे। और मुंह के अंदर जो कुल्ली की सबसे अहम चीज है वो जुबान है। इसका मतलब है सैयदों के सैयद की, नबियों के सरदार की जुबान में ऐसी खुशबू है कि यारा एक कतरा जाए तो पूरी बाल्टी परफ्यूम बन जाए। मैं मिंबर छड़ के थले आके मोटा ला के उस बंदे उत्ते लोग कहना इस्मा इफाम या फलाना फला जो बंदा तलकीन कवर नहीं करना, मैं वो आके पढ़ना, अगर शिया मां के बता चुप हो गया। मौलवी साहब अगर वाकई ये सच है, और वाकई सच है कि मुस्तफा की जुबान में खुशबुओं का ऐसा समंदर है कि पानी में जाए तो बाल्टी परफ्यूम बन जाए, कुरान सर पे रख के बता वो बदन कैसे खुशबूदार होंगे जो मोहम्मद की जुबान चूस के जवान हुआ। भाई मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मौला की कसम इस मौसम में इतना बोलना काफी है। जी बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। सरकार लुत्फ आ रहा है जनाब?
मौसम तो थोड़ा सख्त है लेकिन लुत्फ आ रहा है इबादत का। खुदा आपको सलामत रखे। अच्छा, इतनी खुशबू, ये दलीलें कितनी हो गई? 5 हो गई। अब कितनी आ रही है? 6। हजरत मौलाना अब्दुल हक शाह अब्दुल हक मुहतसिब देहलवी, जैसे आप शियों के अलामा बाकर मिलसी है ना, इसी तरह सुन्नी भाइयों के शाह अब्दुल हक है। बहुत बड़ी शख्सियत, पहाड़ से बड़ा नाम। किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा। वो लिखते हैं छठी, मुस्तफ़ा कौन? वो फरमाते हैं मुस्तफ़ा उस पाक सैयदों के सैयद को कहते हैं। निक्के निक्के लफ्जों पे भी ना थोड़ा थोड़ा सुभान अल्लाह कहा करें ताकि लोग समझे कि शिया सुनते हैं। वो फरमाता है सैयदों के सैयद का नाम है मुस्तफ़ा, जो जंगल से गुजरते थे तो झुक झुक के दरख्त सलाम करते थे। जब पहाड़ों से गुजरते थे, अब तो सिर दी क्या बात है, ये जो लुत्फ से सर फेरते ना, यही तो नशा है हमारा। और जब पहाड़ों से गुजरते तो पहाड़ों में जुम्बश आती थी, जिसे आप ज़लज़ला कहते हैं। तो जुम्बश में आके पहाड़ आपको कहते थे अल्लाह के रसूल पे सलाम हो। जब पथरीली जमीन से गुजरते थे तो मोटे मोटे बेजान पत्थर उड़ उड़ के सलाम करते थे और कहते थे दो जहां के सरदार पे सलाम हो। और जब किसी दरिया, नदी या समंदर के करीब से गुजरते थे तो पानी का एक एक कतरा अपने मुंह से कहता था दो जहां के सैयद पे सलाम, उस पे सलाम जिसका हम सदका है। दो जहां के सदके जामा, दो जहां के सदके पे, यानी दरख्त सलाम करते हैं, यानी पहाड़ सलाम करते हैं, पानी के कतरे सलाम करते हैं, पत्थर सलाम करते हैं, हत्ता के जानवर सलाम करते हैं, सांप भी सलाम करता है और सलाम करने ही आया था। पता नहीं क्यों खुदा आपके हाथ सड़के जावा, अल्लाह आपके हाथ, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये मुंशी बागल का है, मुझे ऊंचा नारा है दरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। सरकार जी सदके सलाम करने ही आया था। अच्छा, तो जब सरकार मिराज पे गए हैं, आसमान सलाम करता है। आसमान ने अव्वल दुव्वम सिव्वम चहारम फरिश्ते जनाब जिब्राइल से लेकर मीकाईल तक, सिदरतुल मुंतहा ने सलाम किया, लौह ने सलाम किया, कुर्सी ने सलाम किया, कलम ने सलाम किया, मशीयत ने सलाम किया, खुदा ने सलाम किया, मलाइका ने सलाम किया। तो अब मैं अगर सारी गुफ्तगू को कंक्लूड करूं तो पता नहीं नतीजा क्या निकलता है कि दो जहां सलाम करते हैं ज़हरा के बाबा को। जेड़ा बंदा चुप रहा घर जाके एक बार सोचे कि वाकई शिया वाला मुंह बनाया, या अंदर से भी शिया हूं। इसीलिए तो शौकत ने जुमला कहा था, अब मेरे नबी को जमाना सलाम करता है मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। भाई मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ये सर क्या, सरकार बहुत शुक्रिया, सरकार बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। जी सारे भाई बोलिएगा मिलके, जी मौला आपको सलामत रखे। तो अच्छा आपका हुक्म जी। मैं नौकर जनाब, मैं असल में मियाँ चन्नू से सीधा गए हैं पिंडी से फिर गए हैं सियालकोट, फिर नारोवाल, फिर यहाँ आ गया हूँ। तो इंज मुँह है, मैं चरस नहीं पीता यार, मैं तो सादा सिगरेट भी नहीं पीता, इसलिए मैं जरा बैठा था, नाराज तो नहीं आप? अल्लाह नौकर क्या नखरा, मुझे कह रहे थे द्वार पे खड़ा हो जा, वो असल में ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब चूंकि आपने दुआ फरमाई है तो नौकर क्या नखरा, क्या मैं खड़ा हो गया। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। दलीलें कितनी हुई हैं? सदके 7वीं। सलाम देखिए, मेरा मुस्तफ़ा, सलाम के बाद मेरा मुस्तफ़ा वो है जिस पर दरूद वाजिब है। दलील नंबर 7वीं दलील क्या है जी? मेरा मुस्तफ़ा वो है जिस पे दरूद। अब दरूद आपके सामने वो पढ़ूंगा जो सुन्नी भाई पढ़ते हैं। उसकी 2 वजह हैं। एक इसलिए, ये जो हम सुन्नी भाई कहते हैं ना, ये लफ्ज भी सही नहीं है। सुन्नी हमारे भाई नहीं, हमारी जान है। यकीन कीजिए, सुन्नी हमारी जान है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ऐसी सुन्नी माओं पे भी सलाम है जिनके बच्चे सबीले लगाते हैं। सुन्नी हमारी जान है। तवज्जो रखिएगा, ये हम शिया सुन्नी भाई इसलिए कहते हैं, आदत पड़ी हुई है, वरना जान जरा बार बार कहना मुनासिब नहीं है, इसलिए हम शिया सुन्नी भाई कहते थे। सुन्नी भाई पढ़ता है दरूद 2 वजहों से। एक इसलिए कि चूंकि वो तादाद में हमसे ज्यादा है, और एक इसलिए कि उनका दरूद बड़ा है। हमारा जो दरूद है ना, शिया दरूद, ये उनके दरूद के अंदर आ जाता है। हमारा दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, बस दैट्स ऑल। लेकिन हमारे भाई जो दरूद पढ़ते हैं वो जरा बड़ा पढ़ते हैं, और उनके अंदर हमारा दरूद भी शामिल है, और उस दरूद को हम भी सलाम करते हैं और हर शिया को सलाम करना चाहिए। वो दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वो अला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐसे मैंने दावा नहीं किया था कि कब्र तक मजलिस नहीं बोलेगी आपको अगर आपने अपने पुत्र का साथ दिया तो। यानी लाहौर वालों 4 हस्तियों पर हमारे सुन्नी भाई दरूद पढ़ते हैं, वो मैं आपके सामने खोल देता हूं। मैं हस्ती गिनूंगा, आपने एक कहना है। तैयार है? इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद। एक मरतबा पे तकलीफ कीजिए। मुस्तफ़ा कौन? दलील नंबर 7। इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, वही वाले पीछे होता है ऊंची बोला जी। मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद जरूर बोले जे मजा आए। इसका मतलब है मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके ऊपर भी दरूद हो। मौला आपको सलामत रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सरकार बिस्मिल्लाह। जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। जी सदके देवा। पाक दलील नंबर 7, पाक मुस्तफा किसे कहते हैं? जिसके ऊपर भी दरूद हो और जिसके, इसका मतलब सदके जमा, इसका मतलब है 2 दरूद हाजी बन के 24 घंटे जिस पाक किबले का तवाफ करें वो ज़हरा का बाबा मुस्तफ़ा है। 2 दरूद हाजी बन के 24 घंटे जिस पाक काबे का तवाफ करें। आपका हक बनता है मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे पूछो जाएगा मुझे तो भाई 2 दरूद तो समझ आ रहे हैं, ये 24 घंटे किथों कटे? हक बनता है ना आपका। तो भाई मैं आपको कुरान से बताता हूं, पढ़ूंगा मैं और आप महसूस करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। और कुरान में लिखा है 24 घंटे। 24 घंटे ना हो मैं मुजरिम। इधर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं ऊपर नबी के। ऐडी भारी शायद चुको लगा ताकि सारे बोलो। और आयतल कुर्सी गवाह है ना अल्लाह सोता है। हाय हाय मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। आयतल कुर्सी गवाह है ना अल्लाह सोता है ना फरिश्ते सोते हैं। इसका मतलब जी सदके इसका मतलब है पाक मुस्तफ़ा वो सैयद है जिस पे 24 घंटे दरूद है। क्योंकि अल्लाह 24 घंटे भेजता है, वो सोते ही नहीं, फरिश्ते सोते ही नहीं। अच्छा इसका मतलब है दरूद 24 घंटे है ना, 24 घंटे दरूद है ना। इसका मतलब है दरूद बड़ा पाक है क्योंकि अल्लाह भेजता है। दरूद बड़ा पाक है क्योंकि फरिश्ते भेजते हैं। अल्लाह वैसे ही पाक है और फरिश्ते मासूम हैं। तो जो ये भेजेंगे वो भी तो पाक होगा ना। या दीवारों पे काफिर लिखता है तेरी मर्जी, मुश्किल ना तरला तेल नहीं है। दरूद उस पे हो सकता है जो दिन के 12 बजे भी पाक हो, जो आधी रात को भी पाक हो। मैं सबके जाना ये लाहौर है, ये मुंशीदान है। मौला आपकी जवानी भाई सलामत रखे। जी सबके एक मतलब सारे भाई मिलकर जी ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह बादशाह को सलामत रखे। जी सदके जावा। इसका मतलब है दरूद उस पे आ सकता है जो 24 घंटे पाक हो। ऊपर से आएगा पाक, नीचे भी पाक होना चाहिए जो पाक को ले सके। इस शिया एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पाक का, पैतन, और लोग मजाक उड़ाते हैं। पता है आपको इस बात का? आपने सुना होगा, कराची से क्लिप आया था, आपने सुना होगा, मैं नाम नहीं लेता जी। तो ये तो पुरानी बात है ना। ये तो जवार साहब आपके वक्त के बाद जब आप जवान थे, ये तो है, ये पुरानी बात है। और अब इतना कहता हूं मैं, ये पुरानी बात है, अब नई बात सुनाता हूं आपको। वो कहता है पैतन पाक नहीं, सब तन पाक। जवार साहब जरा जुमला सुनिएगा। शिया कहते हैं पैतन पाक नहीं भाई जी, सब तन पाक। अपने ईमान कुरान नू हाजिर करके तुहां दसना है कि तुसी इन्ना बोले हो जिन्ना तुहाडे पुत्र मेहनत कीती है। तुसी जानो जज भी तुसी हो, वकील भी तुसी हो, मुकदमा तुहाडे कोले। इंसाफ करना। क्या ये जुमला इंज बोलना सी जिवें तुसी बोले हो? इन्हें आखना लगे है मौलवी साहब कहते हैं पंज तन नहीं सब तन। मौलवी जी सर पे कुरान रख के बता, मस्जिद नबी में सब तन के दरवाजे खुलते थे या पंज तन का दरवाजा? मौला आपके हाथों को सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। गदीर की याद आना कीजिए, उच्चा नारा हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। जी सदके खुदा आपके हाथ। अच्छा जी ठीक है, जी ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। मैं भाई कोशिश करता हूँ, मान भाई कोशिश करता हूँ मैं।
خدا آپ کو سلامت رکھے. میں اصل انہیں جوگا نہیں نا جو تجھے کو پورا کری جاواں. یہ تو ہوتا ہے کوئی بڑا عالم ہو ذاکر کو بہت کر سکتا ہے. میں مسکین آپ کو پتا میرا ٹرتا ہی باتیں ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھولنا جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ کو پتا ہے جو دور جا رہا ہے کتنا مشکل دور ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور اس دور میں بھی اتنا بندہ پڑھے تو سمجھو موج جیسے کم نہیں ہے. یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا تو سنیے گا درود ہے پاک. میرے محترم بھائی ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ 5-7 منٹ اور پڑھ سکتا ہوں نا. اچھا یہ ہے درود, یہ ہے پاک. ادھر سے پاک آتا ہے اور کسی پاک ہی پہ آتا ہے. ادھر سے پاک آتا ہے اور کسی پاک ہی پہ آتا ہے. اچھا خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے سن لیا. اچھا یہ دلیلیں کتنی ہو گئی صدقے؟ 8ویں. اور 8ویں دلیل دوں گا آپ ہی کے منہ سے. آپ ہی کے منہ سے آپ نے جواب دینا ہے. بھائی جی کیا میرے مصطفیٰ پہ صدقہ حلال ہے؟ کیا ہے میرے نبی پہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ جڑے چوپو بھائی سب بولا جی صدقہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر میں آپ کے سامنے چھوٹا سا طالب علم شیعوں کا سب سے چھوٹا نوکر 8 ادلہ کو جوڑوں تے موٹا تے وڈا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مصطفیٰ اس پاک ذات کو کہتے ہیں جس پہ درود حلال ہو صدقہ حرام ہو. ایک کاری پھر سن لو, ایک بار سال لو, چونکہ ہوں ولایت کا پہاڑ گرا رہا ہوں میں آپ کے سینے پہ. اس کا مطلب ہے پاک مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں جس پہ درود حلال ہو صدقہ حرام ہو. ایک کاری پھر سن لو, پاک مصطفیٰ اس پاک ذات کو کہتے ہیں جس پہ درود حلال ہو صدقہ حرام ہو. قرآن دی قسمیں ہم تیری ضد سے بلا فصل نہیں کہتے, تو علی کے علاوہ بندہ دکھا جس پہ محمد کی طرح درود حلال ہو صدقہ حرام ہو. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میرا مصطفیٰ کون؟ جس پہ درود حلال ہو. اچھا ایک آیت پوری پڑھتا ہوں, میں نے پہلے تھوڑی پڑھی ہے, ذرا میں آیت کو پورا کرتا ہوں اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کیا قرآن پاک میں اگلا لفظ کیسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین. لاہور والے ہو, پاکستان والے ہو, سعودی عرب والے ہو, کی یا الذین, سارے بولو یا الذین آمنو. اے ایمان والو. صدقے بڑے بڑے پیار سے گہری بات ہے. آج تہاڈی امانت دے لگا, تہاڈی مرضی کو کیویں لینی, امانت آپ کی ہے. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو, نبی پہ تم بھی درود پڑھو. مجھے میرا مجمع محترم لاہور کا اتنا کثیر مجمع, اللہ نظر بات سے محفوظ رکھے, میرا مجمع مجھے بتائے گا کہ جب اللہ کہہ رہا تھا کہ مومنو تم بھی پڑھو تو کیا لاہور والوں سے کہہ رہا تھا؟ کس سے کہہ رہا تھا؟ ایمان والے. یار لاہور والے بھی تو ایمان والے ہیں نا. میرا مطلب تب کون تھے میں بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ کرام جن کی جوتیوں پہ کروڑوں سلام. صحابیوں سے اللہ کہہ رہا تھا نا, چلو میں 2-3 کے نام لے لیتا ہوں. اللہ کہہ رہا تھا سلمان درود پڑھو. سب کے نام اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابو ذر درود پڑھو, مقداد درود پڑھو, ابو دردہ درود پڑھو, ابو ایوب انصاری درود پڑھو, عبداللہ ابن عباس درود پڑھو, عبداللہ ابن مسعود درود پڑھو. اللہ صحابہ سے کہہ رہا تھا نا کہ درود پڑھو. اور آپ کو پتا ہے شیعہ سنی علماء کیا لکھتے ہیں؟ دھیان رکھا جی, امانت ہے آپ کے. شیعہ سنی علماء کہتے ہیں صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑے اور کہا یا رسول اللہ درود کیا ہوتا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, کب پڑھنا. اور یارہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ شاگرد ہیں نا مصطفیٰ کے. میرے نبی تعلیم دیں گے تو ان کو تعلیم آئے گی نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے مصطفیٰ معلم انسانی ہیں. جیسے سورہ جمعہ کہتی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرا نبی وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو سرکار جب تعلیم دیں گے تو ان کو تعلیم ملے گی نا. اب سرکار نے بتایا صحابہ کو کہ نماز یوں پڑھنی ہے اور روزہ یوں رکھنا ہے, یہ سرکار نے بتایا نا. حج ایسے کرنا ہے, زیارت ایسے کرنی ہے, یہ کس نے بتایا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اب درود بھی تو وہی بتائیں گے نا. تو صحابہ کا صحابہ
दरूद पढ़ो, क्योंकि अल्लाह कह रहा है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ये अमर का सीगा है, हुक्म है, सल्लू पढ़ो। तो जब हुक्म वाजिब आ गया तो अब सहाबा ने पूछा तो है ना कि या रसूल अल्लाह कैसे पढ़, चूंकि वाजिब हो गया ना, तो वाजिब बंदा छोड़े तो गुनाहगार होता है, तो वाजिब तो करना है, वाजिब काम तो करना है। तो अब या रसूल अल्लाह कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है? या रसूल अल्लाह, सहाबा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह दरूद कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? मौलवी साहब काले कपड़े पहन के गली गली मजलिसें करवा के कुरान की कसमें सिर्फ इन्हीं ही तरला से लेने हो, जिनको दरूद की खबर ना हो उन पर दरूद नहीं होता। मौला आपको सलामत रखे, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। एक लफ्ज और कहता हूँ और फिर एक भाई ने हुक्म दिया है वो उस जुमले का, तो मसाहब का वो जुमला क्या कि आपको सलाम करता हूँ। मेरे ख्याल है इसके बाद मातमदारी भी है ना, मातमदारी भी है ना भाई, मान भाई मातम होगा ना, तो 11:36 होगा, फिर मैं ज़्यादा तंग ना करूँ, ठीक है। मैं एक लफ्ज और पढ़ के 2 जुमले मसाहब के कहता हूँ और आपको सलाम करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, ठीक है। मैं वो भी जाहिर है असल नहीं आपकी घड़ी गलत है। क्यों जी? मैंने आपके सामने 8 से 9 दलीलें पेश की हैं, तो मैंने पता है मेरा काम जो है एक दलील 2-3 मिनट का तकादा कर दी है, ठीक है जी। तो 9-3 27 तो यही होगा ना जी, तो 2-3 मिनट का खुतबा तो 5-7 मिनट नारे होगा ना 37। और कैमरे वाले भाई जानते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम लगा हुआ जी। अल्लाह आपको मौला, ये मोहब्बत है आपकी। ईमान भाई अगों भी आना है, तो अगों आना है, अगों मैं कोरोना सुनना को नहीं सुनना। मौला आपकी इज्जत रहे। मैं लो जी जुमला सुनिए, और मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुमला मेरी जाकरी में नहीं है जी। इस छोटे से सीने में शायद इतना बड़ा लफ्ज ना हो। हाँ आप दुआ करेंगे तो अल्लाह दे देगा, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दरूद कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है? अब सैयद दो जहां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को दरूद तालीम दिया। कहा मेरे पीछे पीछे पढ़ो जी सरकार। फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार ने बता दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। सहाबाए किराम ने दरूद पढ़ा और पढ़ के हम तक पहुंचाया। इसलिए सहाबा की जूतियों पर सलाम है, क्योंकि दीन उन्होंने सीखा है और सीख के हमें सिखाया है। क्योंकि हमने तो मोहम्मद व आले मोहम्मद को नहीं देखा, ये तो सहाबाए किराम की बाबरकत जाते हैं जिन्होंने ऐसे चेहरे देखे जिनसे अल्लाह दिखता था। ये तो सहाबा किराम की किस्मत है ना। और खुदा के बंदो, मेरे नबी के चेहरे से खुदा की ज़ियारत होती है। एक लफ्ज मैं पढ़ता हूं, आप मुझे बताइए, आपने कभी ये लफ्ज सुना है हुज्जत खुदा? आपको पता हुज्जत का मतलब क्या होता है? हुज्जत इल्म मंतिक में कहते हैं दलील को। ये भी गल्ला सुना करो, हुज्जत किसे कहते हैं? जी हुक्म जैसे जी ठीक है, ऐसे ही होगा। जरा आप फिक्र ना करें, मुझे ये पैगाम तो पहुंचाने देना पहले। और मैं कितने था हुज्जत का मतलब क्या है? इल्म मंतिक में दलील। अब आप कहेंगे ना जब मेरा मुस्तफा हुज्जत खुदा है, इसका तर्जमा पता क्या बनता है आपकी लाहौर की जुबान में? यानी इसे देख के यकीन होता है कि जब ये है तो वो है। खुदा आपको सलामत रखे। इसे कहते हैं हुज्जत खुदा। मेरे पाक मुस्तफा का जिसमें अतहर वजूद है कि कोई है, जिसकी मखलूक ऐसी है वो खालिक क्या होगा। तो सहाबाए किराम ने पूछा बड़ी दलील, एक रिसाल ले लो, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको पहले कहा कि शायद मेरे सीने में इतना बड़ा लफ्ज पहले ना हो जो मैं पैगाम दे रहा हूं। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सीखा और हम तक पहुंचाया। इसका मतलब है क़यामत तक हम सहाबा की जूतियां चूमते रहे तो हक अदा नहीं हो सकता। जिन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद का दीन हम तक पहुंचाया है, जिन्होंने पाक मुस्तफा का दरूद हम तक पहुंचाया है, इसका मतलब है सहाबा की जूतियों के नीचे जो खाक लगी है वो हमें चाहिए कि हम तबर्रुक समझ के सुरमा आंखों में डालें। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे पढ़ना है? सरकार ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने गौर नहीं किया? और भाई सहाबा ने पूछा था, सरकार ने बता दिया। सहाबा ने पूछा, सरकार ने बता दिया। मेरा भाई है, उसके पास बड़ा बर्तन है, वो गुजरेगा, आपने देखना है। जब तक वो गुजरे मैं यही कहता हूँ, सहाबा ने पूछा, रसूल ने बताया। सहाबा ने पूछा, पाक रसूल ने पढ़ के सुनाया। सहाबा ने पूछा, सरकार ने पूरी वजाहत के साथ समझाया कि मेरे सहाबियों, मेरी जात पर दरूद ऐसे पढ़ना है। कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी तक चुप खड़े हो, सरकार ने बताया। सहाबा ने पूछ के कायनात को बता दिया, जो इन पर दरूद पढ़े वो सहाबी है, जो इनसे जंग लड़े वो सहाबी है।
भाई मौला आपको सलाम है, बिस्मिल्लाह। जनाब सईद आपको सलाम, जनाब सईद आपको सलाम। मैं मसाइल में क्या देता हूँ, मसाइल में कहता हूँ, मसाइल में। अच्छा मौला आपको सलामत रखिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। चूँकि मातूमदारी भी है और हालात भी ऐसे हैं गर्मी के, आपको पता है। मैं ज़्यादा, एक मेरे भाई ने जुमला कहा था कि जनाब अली अकबर का और जनाब अब्बास का वो जो उस्तादी शीर दी हुई थी, वो असल में आपने सुना होगा फ़ज़ाइल के रंग में, लेकिन वो जुमला ऐसा है, वो तो पाक आलिया का जिगर फाड़ गया था। जब जनाब अब्बास ने ऐसे वार करके सुनाया था ना अली अकबर को कि ऐसे वार किया जाता है, तो जनाब अली अकबर चूँकि चचा थे ना वो सरकार अब्बास, तो ऐसे ज़्यादा ज़ोरावर थे, तो सरकार के गाजी का जो नेज़ा है ना उसकी अन्नी यहाँ तक आ गई थी। और ये सारा जनाब आलिया देख रही थी। जब यहाँ के रुका है ना, तो पाक बीबी ने कहा था हाय मेरे अल्लाह। तो जनाब अब्बास ने कहा था आलिया मैं जानूँ, मैं कोई इस तरह कर सकता हूँ? बीबी ने कहा नहीं, तूने जब नेज़ा करीब किया ना, मुझे कोई नेज़ा याद आ गया। मौला आपका पुरसा कबूल। ये मेरे भाई ने कहा था इंशाल्लाह जब हालात साजगार होंगे तो मैं आपको पूरा अपने भाई का वो हुक्म कर दूंगा। अभी मुझे वो कह रहे थे कि 2 जुमले वो जनाब सैयद शुहदा के कहने हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर तो सिर्फ फार्मेलिटी के तौर पर मसाइब पढ़ना है तो मैं लफ्ज़ कह के चला जाता हूँ, और अगर वाकई आप चाहते हैं कि 2 मिनट आप रोना चाहते हैं तो फिर मुझे बताइए, मैं मसाइब शुरू करूँ। पिछले साल शाम गरीबा से लेकर इस साल शाम गरीबा मैंने जेल में पढ़ी है, और मैंने इतना इज्तिमा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अकबर रिजवी साहब की कोठी में मजलिस थी, मेंबर वहाँ था, और सारे जेल के बाजार भरे हुए थे। पिछली शाम गरीबा से लेके इस शाम गरीबा तक सोशल मीडिया पे आपने एक पोस्ट पढ़ी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो पोस्ट आपके नौकर की है। वो मैं पोस्ट आपको बताता हूँ, आपने सुनी होगी, एक करी हाय कर दिया। इरशाद भाई, गोगा भाई, जवार साहब, वो पोस्ट ये थी कि दुनिया ज़मीन खरीदती है, फसल खाने के लिए हुसैन ने खरीदी थी बेटे दफनाने के लिए। मैं बिस्मिल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, जनाब सईदा आपकी हाय कबूल। इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन सारे भाई जो हैं वो सुनने के मूड में बैठे हैं। जो जवार साहब शहादत है ना मौला की 10 मुहर्रम वाली, कि सरकार घोड़े पे कैसे सवार हुए, कैसे जनाब सकीना ने घोड़े के सुम पकड़े, किस तरह सरकार ने कमीज़ को फाड़ा, कैसे अपनी बहनों से कहा कि मेरे ऊपर अभी से मातम कर लो क्योंकि मेरे बाद तुम्हें कोई रोने नहीं देगा, किस तरह सरकार ने हमला किया, कैसे जीन से गिरे, ये मैं सिवाय 10 मुहर्रम के नहीं पढ़ता। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे इसका हुक्म ना दें, लेकिन चूँकि इन्होंने कहा कि जुलझना नहीं है, इसलिए मैं आपको शहादत से कुछ देर पहले का जुमला सुना देता हूँ। आप हाय करेंगे, मैं मातम की सजा दे के आपको सलाम करता हूँ। एक बारी सारे वड्डे निक्के ते मेरे जिड्डे भरा जड़े हो, एक बारी रल के दसो, क्या ये बात सही है कि जब इंसान पे चारों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े तो उसे माँ बड़ी याद आती है? मैं बिस्मिल्लाह। आपकी हाय बता रही है कि मेरा जुमला ठीक था। चलिए मैं फिर दोहराता हूँ, इसके बाद मसाइल पढ़ता हूँ। जब इंसान जेडे खलोते हो, कोई मेरा भरा अज 16 मुहर्रम में कोई मेरा भरा झक के ना रोवे। तो पता है अज 16 मुहर्रम की होया सी? ये वो अयाम है जब बाजारों में एक धक्का लगता था 16 सैयदजादियां इकट्ठी गिरती थी, क्योंकि एक रस्सी में 16 सैयदजादियां थी। तो आप बाजार में खड़े हैं, बाजार में बैठे सुन रहे हैं, इसलिए कोई भाई शर्म महसूस करके रोए। मैं जुमला फिर दोहराता हूँ। जब इंसान पर चारों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, उसे माँ याद आती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली वलीउल्लाह की कसम, असगर को दफन करके दामन झाड़ के मदीने की तरफ मुंह करके उच्चा रो के हुसैन कहता है अम्मा मैं थक गया। मैं बिस्मिल्लाह, अम्मा जी सदके जावा, अम्मा मुझे प्यारे, बिस्मिल्लाह कर, अम्मा मुझे प्यास खा गई। लाहौर वालों लिखा है कि जो ही हुसैन ने कहा ना अम्मा मैं थक गया, मुझे प्यास खा गई, अल्लाह तेरी आंखों पर रहम फरमाए, लिखा है कि एक पानी का भरा हुआ जाम हुसैन के सामने आया। आपने खामोशी से सुना है ना, किसी मेरा गिरेबान फाड़ के पूछा नहीं कि पानी आया भी तो असगर दफनाने के बाद आया। मैं बिस्मिल्लाह। मेरे मौला ने यूं देखा, तू कौन है? कहा अजनबी हूं। पानी क्यों लाया? कहा जख्मिया तूने अभी तो कहा है कि मैं प्यासा हूं। इमाम फरमाता है यहाँ हर कोई मुझे मार रहा है, यहाँ लोग मुझे सलाम के लायक नहीं समझते। बिस्मिल्लाह, तू पानी ले आया और ऊपर से कहता बस मैं ऐसे ले आया। असल बात बता, वजह क्या है?
लो जी लाहौर वाले उन्हें दो गल्लां दसियां ने ते दोवां तो तुसीं हाय करके सुनना। कहते पहली वजह ये है जब तूने कहा ना अम्मा मैं प्यासा हूँ, तेरी आवाज में कोई दर्द ऐसा था कि मेरे जिस्म से जान खत्म हो गई। और दूसरी वजह लो जी जिन्ने उमती बैठे हो जी सारे एक बारी हाय करा जी, भावें शिया तो भावें सुन्नी, क्योंकि ये मुश्तरका मसाइब पढ़ने लगा हूँ, सारे एक बारी हाय करा जी। कहा दूसरी वजह ये है कि मैं उमती हूँ मदीने वाले मुस्तफ़ा का, मेरे नबी का फरमान है जब कोई जख्मी पानी मांगे नमाज तोड़ के भी उसे पानी पिलाना चाहिए। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा और जख्मिया मौला हुसैन से कहता है जख्मिया तू तो अजब रंग का जख्मी है, जिसकी अम्मा शिया एक बारी हाय करे, तू तो अजब रंग का शिया जख्मी है, तेरे कमीज भी खून में डूबी हुई है, खून तो आप याद करना है, और तेरी तो दाढ़ी पे भी खून है। लाहौर वालों उसे क्या पता था कमीज वाला खून अकबर की बर्ची का है, दाढ़ी वाला खून असगर के दिल का है। जवार साहब ऐसे मेरे भाई ने देखा और देख के कहते हैं कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, ले जा मैंने पीना नहीं। हैरान होकर कहता है जख्मिया जी बाबा जी, जी बाबा जी, जख्मिया पहले तो खुद कहता है मैं प्यासा हूँ, अब जब मैं पानी लाया हूँ तो तू कहता है मैंने पीना नहीं है। इमाम फरमाते हैं मेरी कोई मजबूरी है। कब मुझे मजबूरी बताएगा? इमाम फरमाते हैं वो क्या है? कहते हैं कि टीला है, टिब्बा है करबला का। इमाम फरमाते हैं वहां से होके आ जा, फिर तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये गरीब पानी क्यों नहीं पीता। सारे आयो करो रोने नोया सुन के मातम करन एक करी हाय करा दे। जो है मेरी माओ बहनों, जो है ये वहां से गया है ना, इसके हाथ में पानी का जाम था, इसने भरा हुआ जाम जोर से मट्टी पे फेंका, मुंह पे मातम करता हुआ मौला हुसैन की तरफ मुंह करता और जख्मिया और पानी वाली गाली छाटा, हाथ उठा दुआ मांग। इमाम फरमाया देखा क्या है? कहते कोई 18 साल का जवान है जिसके सीने में गर्शी का फल टूटा हुआ है, जिसकी पानी बड़ी फूट रही है। कहते मुझे वह शरीफ की कसम इतना सोना जवान मैंने अल्लाह की बड़ी कायनात में आज तक नहीं देखा। सारे हाय करा दे, मेरी कहानी तो मेरे पिता भी एक बार नीचे हाय करा दे। इमाम फरमाया दुआ कौन सी? कहता दुआ मांग इसकी बर्छी से पहले इसकी माँ भी मर गई हो, मैं बिस्मिल्लाह इसकी बर्छी से पहले इसका बाबा भी मर गया है, और जिसका इतना सोना पुत्र इस एज में दुनिया से चले जाए तो वो ना बाप जीने के नहीं रहता है, वो ना माँ जिन। मेरे मौला ने ये देखा, मैं हाँ तो सच कहता है। ये तो मेरे देखा है जब कहूँ तो सच कहता है। ये कह के ना हुसैन के मोटे मोटे आंसू आंखों से निकल। इमाम फरमाया अगर मैं तुझे कुछ कहूं, मसाइब कैफियत का नाम है, जाकरी का कमाल नहीं है, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। उतना गिरिया होगा, उतने आंसू होंगे जितनी आपकी नीयत है। मेरा काम है लफ्ज पेश करना। अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्लाह कभी अपने पुत्रां दे गम च ना रोकू। इमाम फरमाया अगर मैं कुछ कहूं तो यकीन करेगा? लो जी मुंडियां दी अपनी मर्जी है, मेरे बाबे सारे बोलिया जे इंज देख के आंदा तेरा चेहरा बताता है तो किसी सच्ची माँ का बेटा है। बिस्मिल्लाह तू जो जवाब साहब तू जो कहे पाक होगा जी, तू जो कहे। मैं अरशाद साहब कहता है मैं मानने को तैयार हूँ। हुण दिल करदा ना मैं उत्थे तुहाडे कोल आवां, तुहाडे पैर चूम के आखां यार एक बारी हाय करो। कुरान दी कसम जुमला से लैके इमाम फरमाते हैं वो तुझे जिसकी बर्छी बर्दाश्त नहीं ना मेरा सगा बेटा है। और मैं बिस्मिल्लाह हाँ मेरा सगा बेटा है। आप सब ने जवाब साहब से लेके आखिरी भाई तक आपने जो हाय किया किस पे की है? अली अकबर पे। मुझे पाक अली अकबर के जख्मी सीने की कसम इसने अकबर पे हाय नहीं की। इमाम फरमाया वो मेरा सगा बेटा है। मुंह पे मातम कर कहता है अगर वो तेरा बेटा है जिसे दफन कर रहा था वो कौन है? इमाम फरमाया वो मेरा 18 साल का था और ये मेरा 6 माह का है, और वो भी पानी मांगता हुआ चला गया और वो भी पानी मांगते हुए चला गया। अब तू ही बता जिसकी इतनी सोहनी जोड़ी दुनिया से प्यासी चली जाए कि वो प्यो भी कभी पानी पींदे? हैरान हो गया, हैरान हो के ना जिस्म कांप रहा है, इस अजनबी का कांप रहा है। इमाम फरमा क्या हुआ? ए को झोली है ना जी, इनू खैरात हाय दी खैरात ना भरिया जी, ये मेरा तरला है, क्योंकि जुमला इस लायक है कि अगर जाया हो गया मैनू कलेजे दुख लगना। एक करी हाय करा जी। कहते हैं जख्मिया वो तेरा 18 साल का बेटा, ये तेरा 6 माह का। इमाम फरमा क्या हुआ? का जब तूने कहा था ना अम्मा मैं प्यासा हूं, मैं पानी का जाम लिए दरिया के किनारे गया था, वहां मैंने एक लाशा देखा था जिसके साथ बाजू नहीं थे। बिस्मिल्लाह तो समझ तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। मैंने एक लाशा देखा बिस्मिल्लाह भाई जी सकते जिसके साथ बाजू अली रजा भाई नहीं थे। वो कौन था? इमाम फरमाया मेरा सगा भाई था, बड़ा वफादार था, उसी के सहारे मैंने बहनों को जंगलों का रुख करवाया था। कुरान दी अजमत की कसम हैरान होकर कहता है जख्मिया वो तेरा 18 साल का, ये तेरा 6 माह का बेटा, वो तेरा 30-35 साल का कड़ियल जवान भाई,
इतने करीबी रिश्ते ज़िबा करवा के अब भी सब्र का पहाड़ बने खड़ा है। मन अंता बता तो कौन है। मुंशी बाग लद्दे में मैं लफ्ज पेश करूं तो फिर जाकरी का फायदा नहीं। इतना पुराना तरड्डा अदादारी का एक कोई इशारा करना तो सारे हाय करा सारे। इमाम फरमाया वादा याद है? कौन सा? अगर मैं तुझे अपनी मजबूरी बताऊं मैदान छोड़ कर चला जाएगा? कहता तेरा मेरा मदीने वाला मोहम्मद जामिन है, तो बता मैं चला जाता हूँ। जिन्हें मेरे लिए वेखे ना नहीं उन्हें समझ आए नहीं। इमाम फरमाया अब बताओ मैं कौन हूँ? कब बताओ कौन? इमाम रो के कहते हैं वो जंगलों में तुझे जिसकी हदीसें याद है ना मैं उसी का नवासा हो सकता बिस्मिल्लाह वो मैं ज़हरा का नाम हूँ जिसके लिए मोहम्मद जैसा रसूल लाका बनता था और मैं ईद पे हूँ। बिस्मिल्लाह मैं ईद पे सवारी करता हूँ। भाई जब तक मैं कहूँगा नहीं कहीं से जनाजा नहीं आएगा। आपने मेरे पर दो जोड़े सुनने हैं ताकि जरा इबादत मुकम्मल हो जाए, फिर आप जैसा चाहे मातम करते हैं। बड़ा अच्छा मसाइब आप सुन रहे हैं। आज मुझे आपके अंदर जी अच्छा आज मुझे आपके अंदर मसाइब खड़े को पढ़ने में लुत्फ आ रहा है। हर आंख बरस रही है, हर भाई का चेहरा मुरझाया हुआ है। यही हक है। पाक बीबी तो कभी अपने गम च न रुआए जो मुस्तफ़ा के उजड़े हुए घर को रो रहे हैं। जब कहा ना मैं हुसैन हूं, इसने अपना माथा शब्बीर के नलैन पे रखा और कहता है मौला 2 मिनट के बाद जनाजा आएगा। कहता है मौला एक बात तो बता, क्या मेरा खून पलीत है? क्या मेरा अकीदा गलत है? इमाम फरमाया जो हुज्जत खुदा के कदमों पे सर को झुका दे उसका खून भी पाक है, उसका अकीदा भी पाक है। लेकिन एनकर के अंदर फिर मौला मुझे इजाजत दे ना मैं अपनी गर्दन कटवा के तेरे जूते पे निसार करूं। मुझे बार बार क्यों कहता है कि यहाँ से चला जा? सारे हाय करें दे। इमाम फरमाता तूने सिर्फ मुझे मजलूम समझा, तुझे पता नहीं मैं सलूनी वाले अली का बेटा हूँ। कहता वाला बिल्कुल। इमाम फरमाता फिर सोच के बता, इसलिए कहता हूँ चला जा। सोच के बता क्या घर में तेरी 4 साल की बेटी है? कहते जी मौला हाँ। फरमाया तो कपड़ा बेटा है? जी मौला। फरमाया 2-2 महीने घर से बाहर रहते हैं ना? जी मौला। फरमाया याद कर अब जब तू निकलने लगा था तेरी बेटी ने तेरा दामन पकड़ा था ना, उसकी आंखों में आंसू थे ना, वो तुझे कह रही थी ना बाबा जल्दी है। मेरे लिए बाबा जल्दी आना, तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती। बाबा जल्दी आना, तेरे बगैर मुझे घर अच्छा नहीं लगता। फरमाया जब से तू आया है ना हर रोज बड़े गेट पे खड़ी हो जाती है, खाली गली देखती है और देख के फिर कहती है बाबा हौसला भाई, उसके भाई के हाथ पकड़ा हौसला, और देख के फिर कहती है बाबा आज भी शाम हो गई, बाबा तो आज भी नहीं आया। मैंने एक छोटी सी रिवायत पढ़ी है अभी आपसे पहले, नारेवाल में काली सूबे में रिकॉर्डिंग हो रही है, आप अभी नेट पे देख सकते हैं। नौजवान भाई थे जो आपस में बाहर हो गए और बेहोश हो गए, पीछे मोहम्मद शाहजहां जी थे जो मंगला यासीन आए थे। बड़ा कहते रहे मुझे पढ़ मैंने कहा नहीं, हमारा काम आपको रुलाना है, मारना नहीं है। मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं जो मेरे दादा हुसैन का वफादार है ना रूह जमीन भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। इतनी भारी कब्र है मेरे मौला हुसैन को रोने वाले की। इसलिए मैं जुमला पढ़ूंगा, इसके बाद 1 मिनट के बाद मैं इशारा करूंगा, फिर जनाजा आएगा। सारे रल के मकानी बन के जिन्हें जनाजा चाहिए इंज करके एक बार हाय करो। इमाम फरमाते जब से तो आया है ना वो खाली गली देखते हैं। कुरान की अज़मत की कसम इसी बात का दुख है, इसी बात का। आधे मिनट के बाद जनाजा आ जाएगा, एक करी ऊंची हाय करेंगे। इसी बात का दुख है कि जिस हुसैन को अकबर और असगर लाशों के दरमियान खड़े होकर उम्मत की बेटियों का एहसास था, उसके सामने सकीना को तमाचे मारकर है। मैंने कभी पढ़ा नहीं आपकी मोहब्बत में कर रही है हराम ज्यादा। से किसी ने पूछा तूने सकीना को ज्यादा मारा है, ज़ैनब को थोड़ा मारा है, इसकी वजह क्या है? कहते मुझसे पूछ, जब मैंने हुसैन के ऊपर घुटना टेका है ना और मैंने बाले में हाथ डाला, मैंने पहली ज़रब मारी, हुसैन कहता है सुबहान रब्बी या लाला व बिहम्दे। मैंने दूसरी ज़रब मारी, हुसैन कहता है सुबहान रब्बी या लाला व बिहम्दे। कहता मैंने 6 ज़रबें मारी। मेरी नीयत ये थी कि कुछ ऐसा हो हुसैन अल्लाह की तस्वीर छोड़े, लेकिन हुसैन ज़रबे खाता रहा, अल्लाह का नाम नहीं छोड़ा। कहता पता नहीं क्या रखा है इस छोटी बच्ची ने, जब मैंने इसे तमाचा मारा हुसैन ने तस्वीर छोड़ी, हाथ जोड़े और कहता ना मार, वो मेरी तहज्जुद की कमाई है, ना मार, वो मेरी 3 दिन की प्यास। मात में हुसैन